guys, today we are going to start class 6 English chapter 1 Who Did Patrick's Homework, and it is written by Carol Moon. Now let's know some word meanings before starting the chapter. Nintendo is a video game. Ignoramus means an ignorant person. Breeches means short trousers. Dishcloth is a cloth used for washing dishes. Hamper is a basket with lid. Grimace scowled, pursed his lips. These are the expressions showing disgust, anger and disapproval. Glitch means any problem, any sort of problem. Shriek means give a short, high-pitched cry. थोड़ी देर के लिए एकदम जोर से रोना, उसे कहते हैं shriek. Nag, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे को हमेशा परेशान करते रहता हो किसी भी चीज के लिए. Drag means something dull or uninteresting. Silly means secretively. Kid means a child. Chores are the daily works which we do. And last word is attitude. It is a feeling about someone or something. Any feeling about someone who we care or something like that is known as attitude. So note down these, then we will start the chapter. Let's start the chapter. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. अब यहाँ पे बात होती है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम पैट्रिक होता है. उसे अपना होमवर्क करना कभी भी पसंद नहीं आता है. इवन इफ उसकी टीचर्स बोलती है कि तुम अपना होमवर्क करो वरना तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे. वो बहुत ही इग्नोरेंस यानी एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह फील भी करता था. उसे यहाँ पे मैंने लिखा है वो लैक्स एजुकेशन, जैसे कि उसमें पढ़ाई की कमी हो, शिक्षा की कमी हो, ऐसा वो फील करता था. पर वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था. ही हेटेड होमवर्क. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. अब क्या होता है, एक दिन उसकी जो बिल्ली रहती है वो किसी चीज से खेल रही होती है. तो जब पैट्रिक उसके पास जाता है तो उसे छीनता है. उसे लगता है कि ये डॉल है, लेकिन वो जब देखता है अच्छे से तो वो रियलाइज करता है कि नहीं, ये डॉल नहीं है, एक टाइनिएस्ट मैन है जिसे हम लोग एल्फ कहते हैं. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to the cat. I will grant you a wish. I promise you that." अब क्या होता है कि वो जो टाइनिएस्ट मैन रहता है, जो बिल्ली जी से ले रही होती है, खेल रही होती है या परेशान कर रही होती है, जो भी, तो पैट्रिक उसे छीनता है. तब वो जो रहता है एल्फ वो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे बचा लो इस कैट से, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कोई एक विश तुम्हारी पूरी करूंगा. और यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो क्या क्या पहना रहता है. वूल शर्ट पहना रहता है, ओल्ड फैशन ब्रीचेस यानी कि शॉर्ट ट्राउजर्स पहना रहता है, और एक हाई टॉल हैट पहना रहता है. विचेस यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि राइम करने के लिए, और विचेस में आप लोग देखेंगे कार्टून में या कहीं पे विच लोग जो रहती है, चुड़ैल लोग, उन लोग के पास एक लंबी सी हाइट की टोपी रहती है, इसलिए. Now, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अब बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा. सबसे पहले तो वो रियलाइज उसके दिमाग में ये आता है कि मेरे तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, मुझे सारा आंसर्स मिल गया. मैं होमवर्क नहीं करवाता तो मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मेरा होमवर्क कर देगा. तो बोलता है कि तुम मेरा एल्फ को बोलता है कि मेरा होमवर्क कर देना, और 35 डेज बाकी मेरा सेमेस्टर खत्म होने के लिए, तो तुम मेरा होमवर्क कर देना, और अगर तुम बहुत अच्छा करते हो तो मुझे सारे सब्जेक्ट में एज भी मिलेंगे. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his feet, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it.
अब क्या होता है कि वो जो लिटिल मैन रहता है उसका फेस एकदम अजीब सा होने लगता है, रिंकल उसका बहुत अजीब सा उसका एक्सप्रेशन आ जाता है फेस पे। स्टडीज को लेके किसी को भी आ जाता है तो उसको भी वैसा ही फील होता है अंदर से। वो अपना पैर किक करता है, लेग को किक करता है, फिस्ट को ऐसे टाइट कर देता है, मतलब उसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर वो बोलता है आई एम कर्स, क्या मैं श्रापित हूँ, पर मैं ये करूँगा, क्योंकि उसे बचना था उस बिल्ली से, इसलिए वो बोला कि मैं करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say. And Patrick would have to help in whatever way. अब क्या होता है कि वो अपनी बात को मानता है और एल्फ जो रहता है वो पैट्रिक का होमवर्क करता है, पर वहाँ पे एक ग्लिच यानी एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो जो एल्फ रहता है वो सब कुछ नहीं जानता है पढ़ाई के बारे में, ऑलमोस्ट कुछ नहीं जानता है वो पढ़ाई के बारे में, तो उसे हर चीज़ में हेल्प चाहिए रहती है। तो वो पैट्रिक को बोलता है मुझे हेल्प करो, ऐसे हेल्प करो, वैसे हेल्प करो, हर चीज़ में वो उसे हेल्प मांगता रहता है और पैट्रिक को हेल्प करना भी पड़ता है क्योंकि वो उसी का होमवर्क होता है। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. अब एल्फ पैट्रिक को बोलता है कि मैं ये वर्ड नहीं जानता, इसका वर्ड एक डिक्शनरी में खोजो, ये करो, उस वो वर्ड को पढ़ना भी नहीं जानता, तो बोलता है एक एक करके तुम उसको स्पेल करो ताकि हम उसका वो वर्ड जान सके, फिर उसका हम मीनिंग खोज के तुम्हें दे। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter. अब क्या होता है कि होमवर्क करते रहता है वो, तो अब जब मैथ्स की बारी आती है तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। बोलते हैं टाइम्स टेबल क्या होता है, ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस, ये होते क्या, मुझे तो पता ही नहीं। और ह्यूमन हिस्ट्री तो हमारे लिए अभी तक एक मिस्ट्री ही है। हम लोग जान चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, लेकिन एल्फ को नहीं पता था क्या होता है ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। और वो फिर एल्फ बोलता है उसको तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे सारी चीज़ें करने में मदद कर दो। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब वो बोलता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लाओ और बुक्स लाओ, जिससे कि मैं ये सब कुछ जान सकूँ, मैं सीख सकूँ ये सब, और ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर सकूँ। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was mad. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and weary. अब क्या होता है कि हर दिन वो जो एल्फ रहता है वो पैट्रिक के लिए एक नैप हो जाता है। नैप हम बता चुके हैं कि जो किसी को ट्रबल करता हो, यानी कि अब वो एल्फ जो रहता है वो उसको इतना ज़्यादा ट्रबल कर रहा होता है कि ये करो वो करो, उसको परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा बियर्ड, इतना बियरी वो कभी फील ही नहीं किया आज से पहले। तो उसके बाद फिर क्या होता है, रात भर वो सो भी नहीं पाता है, पैट्रिक अच्छे से सो भी नहीं पाता है, और अगले दिन वो सुबह अपनी रेड आईज के साथ और फुले हुए आईज के साथ जाता है स्कूल। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slowly slipped out the back door. अब क्या होता है कि लास्ट डे आ जाता है, सारा होमवर्क एल्फ जो रहता है पैट्रिक का कर दिया होता है, अब उसके पास कोई होमवर्क करने के लिए नहीं रहता है, तो बैक डोर से चुपके से निकल जाता है एल्फ, पैट्रिक के घर से पैट्रिक के बैक डोर से निकल जाता है शांति से, बिना किसी को कुछ बोले। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब क्या होता है, पैट्रिक का होमवर्क वो कर दिया रहता है एल्फ, तो उसको हर सब्जेक्ट में ए मिलता है, सारे के सारे सब्जेक्ट में ए। उसकी जो टीचर्स रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, जो क्लासमेट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं, क्योंकि
उसमें एक सडन चेंज आ गया था, वो पहले होमवर्क नहीं करता था और इस बार उसको तो एस मिले थे सभी में। और उसके पेरेंट्स जो रहते हैं वो तो सरप्राइज हो जाते हैं कि पैट्रिक ऐसा कैसा हो सकता है, इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस कहाँ से आ गया। और इवन इफ अब उसमें एक नया एटीट्यूड आ गया था, वो अपना डेली चोर्स यानी डेली वर्क्स जो रहता था वो कंप्लीट वो करता था, अपने रूम को क्लीन रखता था, सब कुछ उसमें एक न्यू और गुड हैबिट आ गया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret. Just between you and me, it wasn't the elf. Patrick had done it himself. क्या होता है लास्टली, अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है। पैट्रिक को लगता है कि सारा होमवर्क जो है वो उस एल्फ से कर लिया। पैट्रिक बहुत ज़्यादा चालाक था, चतुर था, उसने अपना सारा होमवर्क उस एल्फ से, उस टाइनी मैन से करवा लिया। पर यहाँ पे एक सीक्रेट ये है स्टोरी का कि वो होमवर्क एल्फ नहीं, पैट्रिक खुद क्या रहता है, क्योंकि एल्फ को तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता। पैट्रिक का वो मेहनत था जो कि उसको सारे सब्जेक्ट में एज मिले। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लेवर समझता है, पर एट लास्ट बात यही होती है कि पैट्रिक खुद से अपना होमवर्क किया रहता है और वो सच में एक अच्छा बच्चा बन जाता है। और दिस वॉज अबाउट द चैप्टर। You will get the question answers in description. Thank you. Be with us for more videos.